بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہتان کی تردید۔ ہندوستان کی تاریخ نے نہایت ہی ناقص اور ناتمام خلاصے، جن کو تاریخ کہنا بھی غلطی میں شامل ہے، سرکاری مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ کتابیں غالباً سیاسی اغراض کے مد نظر رکھ کر لکھی جا سکتی ہیں، اور ان کے مصنفین بعض اوقات ایسی بے بنیاد باتیں ان میں درج کر دیتے ہیں جن سے ہندوستانی بچے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر حقیقت کے خلاف غلط عقائد قائم کر لیتے ہیں۔ اسی قسم کی غلط بیانی کے ایک تیر کا مجروح مامون رشید کو بھی بنایا گیا ہے۔ غالباً 30-40 سال ہوئے جب راجا شیو پرشاد ستارہ ہند کی لکھی ہوئی ایک کتاب سرکاری مدارس میں پڑھائی جاتی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ راجپوتانہ کے ایک راجا مسمی یہ ہے، باپا راول، ہاں، کیا ہے یہ؟ مسمہ مسمہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ مسمہ باپا راول پر مامون رشید نے 22 مرتبہ حملے کیے، اور ہر مرتبہ باپا نے مامون کو شکست دے دے کر بھگا دیا۔ سنا گیا ہے کہ یہی سفید جھوٹ اور بعض کتابوں میں بھی نقل کیا گیا ہے، جو داخل نصاب تھیں یا مدارس میں پڑھائی جاتی تھیں۔ جن لوگوں نے لڑکپن میں یہ پڑھا ہے کہ مامون نے باپا سے 22 مرتبہ شکست کھائی، وہ اپنے دل میں مامون رشید عباسی کے متعلق کیسا حقیر تصور رکھتے ہوں گے کہ ایک معمولی ذمہ دار کو زیر کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری قوت اور تمام عہد خلافت صرف کر دیا اور ناکام رہا۔ اوپر کے صفحات میں مامون الرشید عباسی کی حکومت کا حال درج ہو چکا ہے۔ وہ خلیفہ ہونے سے پہلے جن جن مشاغل میں مصروف رہا، اس کا بھی اجمالی ذکر آ چکا ہے۔ خراسان کی حکومت پر فائز ہو کر وہ مرو میں مقیم تھا، اور ہارون رشید کا طوس میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 6 سال تک وہ مرو میں مقیم رہا۔ اس نے مرو سے باہر قدم نہیں نکالا۔ ہاں، اس میں شک نہیں کہ اس کی فوجوں نے کابل و قندھار کے باغیوں کو زیر کیا، اور اس ملک میں سن 200 ہجری میں کے قریب عام طور پر اسلام شائع و مروج ہو گیا۔ اسی زمانے میں تبت کا بادشاہ مسلمان ہوا، اور اس نے اپنے سونے چاندی کے بت خلیفہ مامون کے پاس مرو میں بھیج دیے۔ سندھ اس کی حکومت میں شامل تھا، اور وہاں دربار خلافت سے عامل مقرر و معمور ہو کر آتے اور حکومت کرتے تھے۔ لیکن مامون خود کبھی اس طرف نہیں آیا۔ اس نے مرو سے روانہ ہو کر بغداد کا سفر اختیار کیا۔ اس سفر کے تفصیلی حالات تاریخوں میں درج ہیں، لیکن سندھ کی طرف یا ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا ذکر نہیں۔ بغداد پہنچ کر عرصہ دراز تک وہ بغداد میں مقیم رہا۔ آخر ایام حیات میں وہ بغداد سے نکلا تو بلاد روم پر حملہ کرتا رہا۔ شام و مصر بھی گیا۔ ان مغربی کیا کہا بلاد، مغربی اوکے بلاد۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے، میں اس میں نا مس پرنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ان مغربی بلاد کے سفر سے واپسی میں وہ فوت ہوا۔ سمجھ میں نہیں آتا اور عقل کسی طرح تسلیم نہیں کر سکتی کہ مامون الرشید کی زندگی میں آخر وہ کون سا زمانہ ہے جس میں حملات ہند کو درج کیا جائے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کسی گورنر سندھ نے کبھی کوئی دستہ فوج راجپوتانہ کے ذمہ داروں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا ہو، مگر یہ ایسی بے حقیقت اور ناقابل تذکرہ مہم ہوگی کہ اس کا ذکر کرنا کسی نے بھی ضروری نہ سمجھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ عامل سندھ کی بھیجی ہوئی فوج نے چونکہ باپا سے شکست کھائی، لہٰذا مسلمانوں نے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر ایسا کہنے میں متعرض کی پست ہمتی اور بددیانتی کا پردہ فاش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود تاریخ نویسی اور واقعہ نگاری میں ایسا دروغ و کذب کا جائز سمجھتا ہے، ورنہ مسلمان مورخوں نے مامون کی فوجوں کے شکست کھانے، اس کے سپہ سالاروں کے ناکام رہنے کو کہیں بھی نہیں چھپایا۔ قوم زد کی غارت گری کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے اس طعنے کو بھی درج کیا ہے کہ جو نصر بن شیس نے دیا کہ زد کے چند مینڈکوں پر فتح نہ پا سکا۔ بھلا ان مورخین کو اگر مامون کی حمایت و طرفداری میں ایسی ہی مجرمانہ حقیقت پوشی پر اتر آئے تھے تو زد کا تذکرہ بڑی آسانی سے ہضم کر سکتے تھے، کیونکہ چند ہی روز کے بعد یہ قوم رومیوں کی بدولت صفحہ ہستی سے فنا ہو گئی تھی۔ بہرحال باپا کی بہادری کا مبالغہ آمیز تذکرہ کرتے ہوئے یہ سفید جھوٹ، جس کی کوئی اصلیت نہیں، تراشا گیا ہے۔ یہ اسی قسم کا تمسخر انگیز جھوٹ ہے جیسا کہ بکراماجیت کیا ہے
बकरामाजियत की निस्बत हिंदू मौरखों ने बिला किसी शर्म और लिहाज के लिख दिया है कि उसने हिंदुस्तान से मुल्क इटली के शहर रोमा में पहुंचकर जूलियस सीजर शहंशाह रोम को शिकस्त दे दी थी। ये शायद उन्होंने अपने जोम में इस्कंदर यूनानी के हमला हिंद का जवाब दे दिया है। दिल खुश करने के लिए इस किस्म की बातें गांव के चौपाल में बैठकर तो शायद थोड़ी देर के लिए लुत्फ़ सोबत का मूजिब हो सकती हैं, लेकिन इसका नाम तारीख और वाक़या निगारी हरगिज नहीं है। इखलाक तो और ये आदाब। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो हमारी किताबें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो जी। हिस्ट्री की हों चाहे इस्लामियात की हों, उसमें मतलब वाकया जो चीज़ें लिखी जाती है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होती होती हैं, लेकिन उस दर्जे की नहीं होती जो होनी चाहिए। सिर्फ वैसे भी हिस्ट्री में तो मुझे लगता है कोई ऑथेंटिक बुक बहुत नहीं है जी ना जिसको हम 100% ऑथेंटिक कहेंगे, जी जी। किसी भी बुक को। जी। किसी की बुक, हाँ, लेकिन ये है कि काफी ज्यादा हिस्ट्रीज को पढ़ के कुछ ना कुछ इंसान को आइडिया हो जाता है कि ये वाकया है, ये वाकया नहीं है। जी। हम्म, पीछे से पढ़ के ना जी, अब हम शुरू से पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि कैसी इनकी हिस्ट्री चल रही है और कैसे ये लोग थे और हम्म, आगे क्या है। जी। सही। ठीक है, सारे पता। इखलाक व आदात। खलीफा मामून रशीद तमाम खानदान अ, बनु अब्बास में बाएतबार हज़म, अज़म, हिल्म, अक्ल व शुजाअत सबसे बढ़कर था। वो खुद कहा करते थे कि अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हो को अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हो की और अब्दुल मलिक को हज्जाज की जरूरत थी, मगर मुझको किसी की जरूरत नहीं है। इस पर शईस गालिब शईद 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 शियात, क्या कहेंगे इसको? शियात। शियात क्या है सर? शियाओं को कहा है इन्होंने? जी जी। अच्छा, सही। सही। शियत गालिब थी, यानी अलवियों को बहुत काबिल तकरीम और मुस्तहिक खिलाफत समझता था। इसलिए उसने भाई मुतमिन को माजूल करके अली रजा को वली अहद बनाया और अपनी बेटी की शादी की। इसका ये भी ख्याल था कि वो खुद खिलत खिलाफत करके खिला खिलाफत करके अली रजा को अपने सामने खलीफा बना दे। मगर इब्तदाई 10 बरस गुजर जाने के बाद आखिरी अहद खिलाफत में अलवियों के खुरूज और सरकशियों से तंग आकर इसके ख्यालात में तगय्युर आ गया था। इसने ये भी हुक्म जारी करना चाहा कि कोई शख्स हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु को भलाई के साथ याद ना करे, वरना मुजरिम करार दिया जाएगा। मगर फिर इस हुक्म को लोगों के समझाने से जारी नहीं किया। कुरान मजीद के पढ़ने का भी इसको बहुत शौक था। पास रमज़ान में इसने रोज़ाना कुरान मजीद ख़त्म किया। मामू ने जब अली रज़ा को वली अहद बनाया तो बाज़ बनु अब्बास ने इससे कहा कि आप अम्र खिलाफत अलियों के सुपुर्द ना करें। मामू ने जवाब दिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में बनु अब्बास को अक्सर सूबों की हुकूमत पर मामूर फरमाया था। मैं इसका एवज़ करना चाहता हूँ और इनकी औलाद को हुकूमत व खिलाफत सुपुर्द करता हूँ। मामून ने दारुल मनाजिरा में जब जब हर अकीदा और हर मजहब के लोगों को आज़ादाना गुफ्तगू करने का मौका दिया और इल्मी बहस मुबाहिस आज़ादी के साथ होने लगे, तो उसकी तवज्जो मुतवक्किलीन और मुतज़िला की तरफ ज़्यादा मबज़ूल हो गई। इसे मुतवक्किलीन ये कौन है? मुतवक्किलीन जो उसके दरबारी होते हैं, अच्छा, मुतवस्सिलीन और मुतवक्किलीन। सही। और मुतज़िला जो है सर, ये तो वही ग्रुप है ना जो खवारिजियों की तरह का ग्रुप है ना ये? जी जी जी। सही। मुतज़िला की तरफ ज़्यादा मबज़ूल हो गई। उन्होंने आज़ादाना मजहबी बहस व मुबाहिसे का यह नतीजा हुआ कि खल्क़ कुरान का मसला जो दर हकीकत बिल्कुल गैर ज़रूरी और नाकाबिल तवज्जो मसला था, ज़ेर बहस आया और मामून खल्क़ कुरान का कायल होकर इन लोगों पर जो खल्क़ कुरान के कायल ना थे तशद्दुद करने लगा। अल्लाह अकबर। इस तशद्दुद और सख्ती का नतीजा ये हुआ कि मुखालिफ अकीदा के उलमा ने और भी ज़्यादा सख्ती से मुखालफत शुरू की, और तरफ़ैन की इस मुखालफत व असबियत का नतीजा ये हुआ कि मामून के बाद तक उलमाए दीन को इस बेहकीकत और गैर ज़रूरी मसले की वजह से बड़ी बड़ी अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ी। यहाँ तक अबू पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो ओके। खल्क़े कुरान का वाक़या है, ये अ, इसमें ये है कि मोतज़िला की तरफ से ये उठाया गया था पॉइंट। फिर मोतज़िला कुरान को हकम बनाया था ना, कुरान को जो हकम बनाया था। नहीं नहीं, कुरान को जो हकम बनाया था वो हज़रत अमीर मुआविया के ज़माने में बनाया था। ठीक हो गया। हाँ।
खल्क़े कुरान का मतलब ये है कि वो समझते थे कि कुरान जो है ना वो मखलूक है, हम्म। वो अल्लाह का कलाम नहीं है। सही। वो अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह का मखलूक, अल्लाह मतलब मखलूक है, मतलब अल्लाह ने उसको कहा नहीं है, अल्लाह ने उसको बनाया है बाद में। अच्छा, कहा नहीं बना हाँ, जिसे। कलाम नहीं है मतलब। अब मैं आपके साथ कलाम कर रहा हूँ ना, तो उसमें जी कहते थे जी। ऐसे अल्लाह का कलाम नहीं। और सही। जो उस जमाने के उलमा थे, उलमा हक थे, जिनमें सबसे आगे आगे इमाम अहमद बिन हम्बल थे, और याह्या इब्न मईन थे, और और भी बहुत सारे थे। नूह थे एक बहुत बड़े आलिम। तो उन्होंने अच्छा। मुखातबा शुरू कर दी। लेकिन जो दरबारी थे, दरबारी लोग थे मामून, उनका अकीदा खल्के कुरान का था, यानी गवर्नमेंट का भी अकीदा खल्के कुरान का था। अच्छा। सही। ये जो मामून लोग थे, क्योंकि ये मामून के जितने भी सब के सब दरबार वाले थे, वो खल्के कुरान का, वजीर आजम का, आर्मी वालों का, सबका अकीदा खल्के कुरान का था। तो फिर इनको बहुत ज्यादा तकलीफें उठानी पड़ी, जेल में रहे इमाम अहमद बिन हम्बल। कई साल अच्छा, जेल इस में। वजह इमाम से इब्न इसकी रीजन हम्बल है। को तो, जी इनको तो कुछ कत्ल करने को कहा था ना, कि वो जो कल इन्होंने कहा था कुरान मखलूक नहीं है, जी। कलाम अल्लाह है। तो तो फिर जेल। इनको कुछ हुआ था, जेल में जी जी, सजा थी जेल। ना, डेथ की है। जेल में रहे, फिर उसके बाद इनको कोड़े लगे हाँ, रमजान में। बड़ी फिर सारी। छोड़ दिया गया। जी, फिर छोड़ दिया था क्योंकि जो, हाँ, हाँ छोड़ दिया क्योंकि हाँ, मामून की डेथ हो गई थी। मामून के बाद अगला मोतासिम है, मोतासिम के बाद अगला जो खलीफा था वो नेक था। अच्छा। अच्छा। हाँ तो, मुतसिम बिल्लाह के बाद वाला अच्छा था, जी जी, क्या तो नाम था? उनका नाम मुझे भी याद नहीं है, उनका टाइटल क्या है। तो फिर अच्छा, यका यका तो यक जो है ना वो खत्म मुतसिम हो नहीं अच्छा था? मोतसिम अच्छा था, लेकिन उसका भी अकीदा खल्के कुरान वाला ही था। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो ये जो जैसे कुरान को सहीफे जैसे आते हैं, तो उसको वो मखलूक कहते हैं? जी जी, खल्के कुरान समझते हैं जैसे वो। हाँ, खल्के कुरान मतलब अल्लाह का हाँ, कलाम नहीं समझते इसको। नहीं, एक तो अल्लाह का कलाम है जो कि वही के तौर पे आया दुनिया में, और एक सहीफे की शक्ल में लिखा हुआ जो आया, उसको, हाँ वो कलाम तो, अल्लाह। हाँ वो नहीं, जो अल्लाह जो ऊपर से आया नाजिल हुआ उसको कहते हैं खल मखलूक है। हाँ, हाँ, जो मतलब नहीं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वगैरह को जो आयतें दी गई, या उन सारा की किताबें, तो वो तो वही के जरिए नहीं आई है ना, वो तो लिखी हुई शक्ल में आई है ना। जी जी जी। तो वो क्या मखलूक में आएगा? देखें, कोई भी बात है जो कि अल्लाह सहीफे हैं, जो भी वही आई है, वो तो अल्लाह का कलाम है ना, वो तो चाहे वो बाद में लिखी गई है। जी। अच्छा, चाहे पहले वो, तो, चाहे हाँ। लिखी हुई शक्ल में आई, चाहे कलाम, लेकिन वो वही की शक्ल में जो आई है, तो उसको नहीं माना जाएगा जी जी, मखलूक, हाँ। है ना? जी जी। तो इमाम अहमद बिन हम्बल को फिर काफी ज्यादा मतलब तकालीफ उठानी पड़ी। फिर बाद में जितना ज्यादा उनको तकलीफें दी गई, उतना ही ज्यादा जो है ना वो, उनको इज्जत और तकरीम दी गई, पॉपुलर। पॉपुलर हो गए, क्योंकि ये जी। बूस्ट मिल गया उनको। मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ थी, कई हाँ। साल उनको नजरबंद किया गया घर के अंदर। उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, मेरे जी। ख्याल में वो जुमा ईद की नमाज पढ़ने भी नहीं जाते थे। अच्छा, हम्म। इस सारे फिर का नाम आपने, अहमद हम्बल का नाम बताया, नू का नाम बताया, तीसरा कौन सा था सर? याह्या इब्न मईन थे। यही नाम याह्या लिखिए, इब्न ठीक मईन, है। उस वक्त बगदाद जो था ना वो बहुत ज्यादा उलमा का था। फिर फिर मस्जिद के अंदर इनका जो हल्का होता था, दर्स होता था, तुला पढ़ने के लिए आते थे, वहां पढ़ाने की इजाजत नहीं थी। हाँ। अच्छा। अच्छा। तो इस तरह पे करते करते जो है ना वो बात बड़ी, फिर जेल में गए, जेल से फिर मदीनत मंसूर में गए, मंसूर में वहां पर इनको कोड़े लगे मामून के जमाने से। अच्छा, कोड़े इनको मुअत्तसिम के जमाने में लगे थे। अच्छा। अच्छा। हाँ। मुतस्सिम। अ, हाँ। हुआ ये था कि मैंने जैसे बताया कि बगदाद था, बगदाद के थोड़ी देर दूर ही एक अब्बासियों ने अलग से खानदान बनाया, शहर बनाया था, जिसे मदीनतुल मंसूर कहते थे। अच्छा। मतलब रॉयल फैमिली वहां रहती थी, अब मदीनतुल मंसूर, अब्बासी अब्बासी खानदान। अच्छा, तो बस। मामून हाँ। तो जेल में रहे उसकी, बगदाद की जेल में। लेकिन जिस जिस दिनों में इनको ले जाया जा रहा था
مدینہ منصور کی جیل میں شفٹ کرنے کے لیے راستے میں مامون کا ڈیتھ ہوئی تھی، پتہ چلا. اس کے بعد معتصم آیا. معتصم کے زمانے میں ان کو کوڑے لگے تھے. اچھا. اچھا. لیکن بعد تو میں پھر یہ جو خانہ جی جی معتصم کا جو بولیے. پھر عقیدہ تھا وہ چینج ہو گیا تھا. وفات سے پہلے کچھ مناظرہ وغیرہ ہوا تھا، تو اس نے اس کو سمجھ میں آ گئی تھی، تو اس نے توبہ کر لی اچھا. تھی. جی. تو یہ جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو چاروں اماموں کی وہ بنی ہوئی تھی، وہاں نماز ہوتی تھی،